Okay, so in the last lecture we have completed set A till question number 45. So today, in today's lecture I will start with question number 46. Okay, so let's start. Question number 46. See, probability of getting a head when two unbased coins are tossed simultaneously is. So basically, set A of chapter number 16, question number 46 we are doing, and the question number 46, what it is asking, probability of getting a head. Probability of getting a head when two unbased coins are tossed simultaneously. Okay, so when two coins are tossed, so coin, if one coin is tossed, what is the possibility whether it is a head or a tail, right? So if two coins are tossed, so what will be the possibilities? So here two coins are tossed, okay. So sample space will be head. So there is a possibility that on one coin it will be head, on the other coin also it will be head, or it will be possibility that on first coin it will be tail and on second coin it will be head, or in third it will be head and tail, then it will be tail, and on other coin also it will be tail. Okay, so these are the possibilities. Except this, is there any other possibility if two coins are tossed? No. Okay, so there is only four possibilities of two coins are tossed. Okay, so here n of s is equal to 4, right? 1, 2, 3, 4. Now what it is asked, an event is asked where we will get a head. A head, okay, only a head is given. So a head means single head. Okay, so how many possibilities of getting a head? See, here two heads are there, so this can't be the possibility. Then here tail and head, here head and tail. Okay, so tail and head and tail means there one head is there. So these two can be the possibilities. Yes, so I am writing getting a head. So A is equal to tail head and head tail. So what is the n of A? N of A means the total of A. Okay, so it is 1, 2. So 2 I wrote. Now probability. Now how we are getting the probability? Probability we have done before also. Yes, so you must be knowing probabilities formula, yeah? Or you must be. See, P of A is equal to N of A upon N of S. What is the probability formula? P of A. If we want to find the probability of A, so what we have to do? We have to do N of A upon the total, that is N of S, sample space. Yes, P of A is equal to N of A upon N of S. So that formula I wrote. So P of A is equal to N of A upon N of S. Now what is N of A? 2. And what is N of S? 4. So by cancelling it came to 1 upon 2. ठीक है, हाफ आ गया. अब हाफ means 0.50, जो कि आपका आंसर है B. Okay, in your textbook it is B option, right? Yes. So now question number 47. If an unbased coin is tossed twice, the probability of obtaining at least one tail is. Again it is said that if an unbased coin is tossed twice, दो कॉइन को नहीं कर रहे बट एक कॉइन को ट्वाइस टॉस कर रहे हैं. ठीक है, तो जितने बार भी ट्वाइस टॉस किया तो सेम वापस सिमिलरिटी क्या होगी, तो टू कॉइन्स की वापस से पॉसिबिलिटी आ जाती है, दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल. करेक्ट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. सो सैंपल स्पेस एच एच टी एच एच टी टी टी. ओके, सो एन ऑफ एस इज 4. नाउ व्हाट इज द इवेंट आर सी? The probability of obtaining at least one tail, at least one tail. Whenever at least is said, at least means कम से कम एक टेल होना चाहिए. कम से कम एक टेल होना चाहिए मीन्स एक टेल से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, बट कम से कम एक टेल तो चाहिए ही चाहिए हमें. ओके, सो what will be the A then? A will be TH. तो यहाँ पे T आ रहा है, TH आ गया, HT आएगा, यहाँ पे भी एक टेल आ रहा है, और TT भी आएगा क्योंकि वो आपको बोला कम से कम एक चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा. जब भी एटलीस्ट का है तो कम से कम एक और ज्यादा होगा तो भी चलेगा, तो टेल टेल, तो दिस विल ऑल्सो कम. ओके, सो A आपका मिल गया N of A 3. हाँ, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू N of A अपॉन N of S, दैट इज 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.75. डिवाइड करके देखो 0.75 आंसर आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन सी. ओके, क्लियर? यस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48. सी 48 थोड़ा सा अलग है.
इफ एन अनबेस्ड डाई इज रोल्ड वंस, डाइज, अभी कॉइन नहीं, अभी डाइज कहा गया है, ठीक है। द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ऑड्स इन फेवर का है और मल्टीपल ऑफ 3 का है, ठीक है। तो नाउ डाइज इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस आपका 1 2 3 4 5 6, एक डाइज है इसलिए 1 2 3 4 5 6 होगा। अगर 2 डाइज होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, अगेन 2 1 2 2 2 3, राइट। सो टिल देयर एन ऑफ एस विल कम 36। हमारा एन ऑफ एस सैंपल स्पेस हमारा पूरा मिला के 36 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 6 होगा। सो 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे तो एन ऑफ एस आपका 6 आ गया, ठीक है। अब आपका इवेंट जो पूछा है वो है मल्टीपल ऑफ 3। सो मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 के टेबल में तो 3 and 6, राइट। ये दो ही नंबर्स है। सो मैंने लिख लिया a इज इक्वल टू 3 and 6, करेक्ट। अब एन ऑफ ए कितने हो गए 1 2, सो 2 आ गया। हाँ, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। फाइंड किया तो 2/6, तो मेरा है 1/3। तो यहाँ तक तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड किया, बट एक्चुअली वहां पे पूछा क्या है, सी द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ऑड्स इन फेवर का है, हमने थियोरी में देखा था ऑड्स इन फेवर क्या होते हैं। यस, ऑड्स इन फेवर P of A अपॉन P of A डैश, राइट। ऑड्स इन फेवर होता है P of A अपॉन P of A डैश, और ऑड्स अगेंस्ट होता है P of A डैश अपॉन P of A, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑड्स इन फेवर पूछा है, ऑड्स इन फेवर पूछा है तो आपको P of A अपॉन P of A डैश का वैल्यू पता करना है। तो उसके लिए हमें P of A डैश चाहिए, राइट। बट हमारे पास P of A मिला है, तो हम P of A यूज करके P of A डैश कैसे फाइंड कर सकते हैं। P of A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P of A, ये भी हमने देखा है थियरी में। यस, P of A डैश इज इक्वल टू, कोई किसी का भी A डैश हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस P of A, जो भी है। तो 1 माइनस P of A, सो 1 माइनस 1/3, सो जो कि आ गया 3 माइनस 1/3, तो 2/3 होगा, राइट। ये पता है ना आपको, अपने कॉमन किया डिनोमिनेटर, तो 3 1 3 माइनस 1 एज इट इज आएगा, 3 माइनस 1 2, 2/3, करेक्ट। तो आपका P of A मिल गया 1/3 और आपका P of A डैश मिल गया 2/3, राइट। नाउ वी कैन डू ऑड इन फेवर। तो ऑड इन फेवर हम कैसे करेंगे, P of A अपॉन P of A डैश, सो इज इक्वल टू 1/3 अपॉन 2/3। अब क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, करेक्ट। सो 1/3 इंटू 3/2 आ गया, करेक्ट। अब 3 3 कट हो गया, बचा क्या 1/2। दैट इज योर आंसर, दैट इज 1:2। सो ऑड इन फेवर, क्योंकि ऑड इन फेवर हमेशा रेशियो में होता है, तो 1:2। दैट इज योर आंसर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 49. A bag contains 15 1 rupee coins, 25 2 rupee coins and 10 5 rupee coins. अब एक बैग है जिसमें 15 1 रुपी के कॉइन्स है, 25 2 रुपीज के कॉइन्स है और 10 5 रुपीज के कॉइन्स है, ठीक है। इफ अ कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग 1 रुपी कॉइन इज, नॉट सेलेक्टिंग का है तो 1 रुपी का कॉइन हमें नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 1 रुपी का कॉइन हमें नहीं सेलेक्ट करना है, मीन्स हम क्या सेलेक्ट करेंगे 2 रुपीज और 5 रुपीज के कॉइन सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट। नॉट सेलेक्टिंग 1 रुपी कॉइन्स कहा है, दैट मीन्स वी विल सेलेक्ट आइदर 2 रुपी और 5 रुपी कॉइन्स, 2 और 5, 2 और 5 के कॉइन्स हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 1 का कॉइन हमें नहीं सेलेक्ट करना है, करेक्ट। तो लेट्स सी, तो ₹1 के 15 कॉइन्स, ₹2 के 25 कॉइन्स, ₹5 के 10 कॉइन्स, करेक्ट। नाउ एन ऑफ एस कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका एन ऑफ एस 15 प्लस 25 प्लस 10, दैट इज 50, करेक्ट। अब नॉट सेलेक्टिंग ₹1 कॉइन मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट ₹2 एंड ₹5 कॉइन, करेक्ट। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो 5 और 2 का कितना आ गया 25 प्लस 10 जो कि आया 35। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, that is 35 upon 50, that is 7 upon 10, that is 0.7, okay, 0.7 or 0.70 या 70, okay. So your answer is B option. So for question number 49, your correct answer is B, okay.
Okay, question number 50 now. Okay, see question number 50. A, B, C are three mutually independent with probabilities 0.3, 0.2 and 0.4 respectively. What is probability of A intersection B intersection C? Right now क्या दिया है आपको कि ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विद प्रोबेबिलिटीज, तो उनकी प्रोबेबिलिटी सबको दे दी, मतलब पी ऑफ ए दे दिया है आपको, पी ऑफ बी दे दिया है आपको, पी ऑफ सी भी दे दिया है आपको, और पूछा क्या है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. करेक्ट. नाउ जो आपको दिया है वो हमने लिख लिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 0.4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड करना है, ठीक है. लेकिन हमें इसका फॉर्मूला पता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू उनका इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन, राइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हम थियरी में देख चुके हैं, राइट. तो हम उनकी वैल्यूज डालते हैं एंड वी मल्टीप्लाई इट. तो 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4. सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ रहा है 0.024. तो विच इज योर आंसर सी. ओके, समझ में आया. तो आपको इंडिविजुअली उनकी प्रोबेबिलिटी दे दी है और उनका इंटरएक्शन पूछा है. तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, इनका इंडिविजुअली मल्टीप्लीकेशन. सो ये आपका आंसर है. सो 50 का आंसर है सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 51. सी 51. इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, अगर टू लेटर्स हम रैंडमली ले रहे हैं, टू लेटर्स, ठीक है, होम वर्ड में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवल्स. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नन ऑफ द लेटर विल बी वॉवल्स. तो जो हम दो लेटर सेलेक्ट करेंगे वो वॉवल्स ना हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. करेक्ट. सो HOME होम. ओके, अभी N ऑफ S हमारा कितना है. अब यहाँ पे जब ऐसा चीज आ जाता है ना तो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बोला है कि दो लेटर्स भी होने चाहिए और उसमें से पूरे 4 लेटर्स है, उसमें से 2 लेटर होने चाहिए, ठीक है. फिर दूसरा कंडीशन वो बोल रहा है कि 2 लेटर्स होने चाहिए बट वो 2 लेटर्स वॉवल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है. तो इसलिए हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा. तो हमारा N ऑफ S क्या आ जाएगा, 4 लेटर्स है, उसमें से 2 लेटर्स हमें सेलेक्ट करनी है. तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1. करेक्ट. 4C2. तो हम उसको कॉम्बिनेशन को कैसे करते हैं हमने सीखा है, राइट. 4C2. तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1. तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 3 जा 6 आ गया. करेक्ट. 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1. तो 2 को कैंसिल किया मैंने, 2 1 जा और यहाँ पे 2 2 जा 4. तो 2 बचा और 3 बचा, तो 2 3 जा 6 आया, ठीक है. मैं यहाँ पे कैंसिल करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे ठीक से. सो बेसिकली इट इज 6. नाउ N ऑफ A क्या आएगा. अभी N ऑफ A उन्होंने क्या सिलेक्ट करने बोला है, 2 नंबर्स सिलेक्ट करना है, लेकिन वो 2 नंबर्स में से वॉवल्स नहीं होने चाहिए. तो वॉवल्स कितने यहाँ पे देखो, फिर से 2 वॉवल्स है, ONE, राइट. ONE आर वॉवल्स. सो ये वॉवल्स नहीं होने चाहिए. तो फिर से हमारे पास बेसिकली 2 नंबर है जिसमें से हमें 2 सेलेक्ट करने. करेक्ट. तो 2C2. तो 2C2 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो कैंसिल करके 1 आ गया. अब प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी सेम एज हम करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. तो हमारा आंसर A है क्वेश्चन नंबर 51 का. समझ में आया. होप यू अंडरस्टूड. क्यों हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें चॉइस दी है कि 4 है उसमें से 2 सेलेक्ट करना है और ऊपर से जो 2 सेलेक्ट करने हैं वो वॉवल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है. तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज किया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखिए. If a card is drawn at random from a pack of 52 cards, what is the chance of getting a spade or an ace? तो अभी क्या बोल रहे हैं कि if a card is drawn at a random pack of 52 cards, 52 cards है, उसमें से अगर वो कार्ड उठा रहा है, तो what is the chance of getting a spade or an ace? तो spade और ace मिलने की क्या चांसेस है. अभी आपको पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 52 कार्ड्स में 13 कार्ड्स का होता है. यस. तो स्पेड 13 होते हैं, स्पेड 13 होते हैं और उस स्पेड 13 में एक एस होता है, एक किंग होता है, एक जोकर होता है, एक क्वीन होती है, राइट. 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं, राइट. और एस के कार्ड्स पूरे 52 कार्ड्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं. तो 13 स्पेड कार्ड होते हैं और पूरे 52 कार्ड्स में एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है. तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि स्पेड तो 13 है 52 कार्ड्स में, एस 4 है, ठीक है. लेकिन हम एक बात हमें ध्यान देनी चाहिए कि स्पेड में ना एक एस भी होता है, यानी कि जो 4 एस कार्ड है ना उसमें से एक कार्ड तो स्पेस में ऑलरेडी है, ठीक है. जो एस में जो 4 कार्ड होते हैं, एस मीन्स इक्का, राइट.
तो एक का जो 4 कार्ड होते हैं, एक का 52 कार्ड्स में, लेकिन उसमें से एक कार्ड तो स्पेस में स्पेड में, सॉरी मैंने स्पेस कहा, इट इज स्पेड, सॉरी स्पेड में ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये जो स्पेड है 13 कार्ड्स का, उसमें एस भी है, इक्का का एक कार्ड उसमें है। तो अभी हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 13 तो स्पेड है प्लस 3 एस का कार्ड बचा है, करेक्ट, समझ में आया। 4 - 1 तो 3 आया, तो इज इक्वल टू टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास, 16 हो गए। और एक्चुअली टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो एन ऑफ ए हमारे पास 16 है, एन ऑफ एस हमारे पास 52 है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो 16 अपॉन 52 इज इक्वल टू 4 अपॉन 13 आ गया। ओके, समझ में आया। तो आंसर इज ए फॉर क्वेश्चन नंबर 52। समझ में आया। फिर से बता रही हूँ, स्पेड 13 होते हैं 52 कार्ड्स में, लेकिन स्पेड में एक एस कार्ड भी होता है, और एक्चुअली में एस कार्ड पूरे 52 कार्ड्स में कितने होते हैं, 4। तो 4 में से एक तो स्पेड में ऑलरेडी है, तो हम वो 13 तो ले ही रहे, तो हम एस के पूरे 4 कार्ड्स नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक तो चला गया है स्पेड में। तो बचे कितने हैं, 3 कार्ड्स ही बचे एस के, इक्के के, राइट। तो 13 प्लस 3 लेंगे तो इज इक्वल टू 16। तो एन ऑफ ए हमारे 16 आ गया, एन ऑफ एस हमारे 52 है, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते थे। ओके, सिंपल। तो हमारा आंसर इज ए, राइट। Now question number 53. If x and y are random variable having expected values as 4.5 and 2.5, तो x की वैल्यू 4.5 है और y की वैल्यू 2.5 बोली है एक्सपेक्टेड वैल्यू रिस्पेक्टिवली, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज। तो x माइनस वाई का फॉर्मूला हमारे पास है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आपको दिया है 2.5, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर हम किसी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू के दो नंबर्स को हम सम करते हैं तो उनका एक्चुअली क्या होता है, इंडिविजुअली उनको ऐड करना है, यानी ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। सी आप देख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला चेक करना है यू कैन चेक इट पेज नंबर 16.38 पे देखो, 16.38 पे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू में सेकेंड पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, दैट इज ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, राइट। तो एडिशन के लिए, सम के लिए ये है, तो सब्ट्रैक्शन का उन्होंने नहीं दिया है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम होता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करने जाए तो ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई। और क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा है, x माइनस वाई पूछा है, तो हमें फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 4.5 माइनस 2.5 दैट इज 2। तो आंसर इज ए। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला आपको दिया है, माइनस के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, बस साइन चेंज होगा। तो 4.5 माइनस 2.5 दैट इज 2। तो आपका आंसर होगा ए फॉर क्वेश्चन नंबर 52। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा ए। हाँ सॉरी, 52 का भी ए है, 53 का भी ए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। सो टिल 53 वी आर कंप्लीटेड। समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ओके, इफ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज 23, क्या दिया यहाँ पे, अभी कुछ नया है, वेरिएंस, यस, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज 23, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 23 दिया है आपको, ठीक है। देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 10, तो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 10 आपको पूछा गया, करेक्ट। चलो, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x को ना हम क्या बोलते हैं पता है, उसको डिनोट इससे करते हैं, वेरिएंस ऑफ x को हम वेरिएंस स्क्वायर x इज इक्वल टू, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर x इज इक्वल टू 23 लिखा हमने, क्योंकि वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक ऑन पेज नंबर 16.28। देखिए मैंने लिखा है 16.28 पे आ जाइए, पेज नंबर 16.28 या 16.28 पे एकदम थोड़ा नीचे, वेरिएंस ऑफ x टू बी डिनोटेड बाय दिया, यस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, राइट। हाँ, तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, इससे मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि वेरिएंस दिया है हमें x का, तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर x इज इक्वल टू 23 लिखा है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x चाहिए हमें, तो उसका रूट आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए 23 था, तो अगर हम स्क्वायर हटा रहे तो 23 का रूट आ जाएगा। समझ में आया। हाँ, अब ये तो हमारे पास हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअली क्या फाइंड करने बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x प्लस
10 फाइंड करने बोल रहे हैं, तो हम उसको लेट y ले लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 10 ले लिया, ठीक है। अब इसका अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जाऊँ तो उसका भी फॉर्मूला है पेज नंबर 16.28 पे, देखो लास्ट फॉर्मूला 16.46, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू b क्या होगा हमारा 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, राइट। तो ये bx प्लस 10 है ना, तो ये b हमारा b का वैल्यू 2 हो गया इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो कि है हमारा √23, तो इज इक्वल टू 2 इंटू √23 आया। समझ में आया? अगेन आई विल एक्सप्लेन, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 10 हमने ले लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होता है b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो ये हमारा b है, ठीक है। ये a b नहीं है, ये b है क्योंकि उसके साथ x है, तो ये हमारा b है। तो b की वैल्यू 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो कि हमने फाइंड किया √23, तो 2 इंटू √23 तो 2√23 आ गया। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा फिर इसका स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y, तो इज इक्वल टू 2 इंटू √23 का होल स्क्वायर। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √23 बाहर आके √23 बाहर आके 23 हो गया, राइट। तो 4 इंटू 23 इज 92, so which is our answer D. So for question number 54 our answer is D, that is 92. समझ में आया? स्लोली फिर से देखिए, आपको पक्का श्योर समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड वेरिएंस जो है उसको हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑफ x इज 23। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने जाए तो वो हो गया √23, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो जब हमने स्क्वायर हटा दिया तो रूट में आ गया, तो √23। उसके बाद हमें y लेना है, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 10, फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है जो कि मैंने लिया b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो b हमारा 2 है इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 23 √23 है, मल्टीप्लाई करके 2 इंटू √23, 2√23 आ गया। अब हमें इसका वेरिएंस फाइंड करना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वेरिएंस फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y हो गया, तो 2 इंटू √23 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √23 बाहर आके 23 हो गया, उसका स्क्वायर 23 हो गया, सो 4 इंटू 23 इज 92। ओके, सो आंसर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54, राइट। समझ में आया? यस। Okay, now the last question of this set A, that is question number 55, and ये जो भी मैंने कराया है ना, ये बहुत सेट A जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेट है फॉर चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ओके, फॉर चैप्टर 16, सॉरी चैप्टर 16 के लिए सेट A और सेट B दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट C थोड़ा सा लेंदी है, तो सेट A सेट B पे आप ज्यादा फोकस करना, ओके। एंड दिस स्पेशली दिस कहाँ से पढ़ा है मैंने, 46 से जो भी पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है। So last question, question number 55. What is the probability of having at least 1/6 from 3 throws of a perfect die? ठीक है, what is the probability of having at least 1/6 from 3 throws of a perfect dice? अब वहां पे बोला है उसने कि what is probability of having 1/6, एक 6 आने की क्या probability है अगर मैंने डाइस को 3 बार थ्रो किए, ठीक है। एक 6 आना चाहिए मुझे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर मैंने डाइस को 3 बार थ्रो किया। कितने बार थ्रो किया? 3 बार थ्रो किया। तो इसका तो सिंपल अगर हम करने जाए तो एक ही होता है कि हम 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, होप कि 1 पॉसिबिलिटी हो 6 आने की, तो 1 में से हम जो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 1 में से हम कितनी पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 आउट ऑफ 6 पॉसिबिलिटी नहीं है, करेक्ट। मतलब 5 बार हो सकता है कि डाइस ना गिरे, 6 ना गिरे, ओके। तो 5, लेकिन कितने बार थ्रो करे? 3 बार, तो हो सकता है 3 बार पॉसिबिलिटी है कि 6 ना गिरे, तो 5 का क्यूब, 5/6 का हम क्यूब लेंगे। इन सिंपल वर्ड्स मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, n इज इक्वल टू 3 दिया है आपको, करेक्ट, यानी कितने बार थ्रो करना है, तो नंबर 3 लिया मैंने। p इज इक्वल टू, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में ले रही हूँ कि 6 गिरे, कितनी पॉसिबिलिटीज है कि 6 गिरेगा,
तो 1 आउट ऑफ 6, राइट। पूरे 6 नंबर्स है डाइस में, उसमें से एक ही 6 है, करेक्ट। मतलब 6 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से 6 कितना है, एक ही है, तो 1 आउट ऑफ 6, तो 1/6 मैंने ले लिया। क्यों मैंने ले लिया कि 6 नहीं है, तो 6 नहीं है का क्या पॉसिबिलिटी है, 5/6, क्योंकि बाकी का 1 2 3 4 5 नंबर्स है, 5 आउट ऑफ 6, तो ये मैंने ले लिया 5/6। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब एटलीस्ट 1/6 बोला है, एटलीस्ट 1/6 मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, 6 गिरने की पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए हमारा, करेक्ट। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जो हमें कैसे आएगा, 1 में से जो पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब अगर समझो ये a है, तो 1 में से मुझे a' को निकालना पड़ेगा। अगर a मेरा ये जो इवेंट है वो ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ 6 गिरने की, तो मेरा a' क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ 6 ना गिरने की, करेक्ट। a मेरा है पॉसिबिलिटी ऑफ 6 गिरने की, तो मेरा a' जो होता है वो पॉसिबिलिटी है जो 6 ना गिरे। तो हम कैसे निकालते हैं a' को, 1 माइनस हम a' कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है ना गिरने की। तो 1 माइनस p x इज स्मॉलर देन 1, करेक्ट। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 था या इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारा आ गया स्मॉलर देन 1, जो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस p, तो x 1 से छोटा है, मीन्स x इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसका एक फॉर्मूला है, कैसे आएगा कि 1 माइनस कितने हैं पूरे n, 3, तो 3 से 0, क्योंकि 0 x की वैल्यू तो 0 लिया, इंटू फिर क्या करते हैं, फिर p और इंटू 5/6 इंटू p और इंटू q का क्यूब करते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर्स दिए ना इसलिए क्यूब करते हैं। बट यहाँ पर ये एक्चुअली फॉर्मूला है, 1 माइनस 3 नंबर दिया है, तो 3 का कॉम्बिनेशन हम लेंगे 3 से 0, क्योंकि x हमारा 0 है यहाँ पे, p रेज टू 0 लेंगे, और q को हम 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 3 नंबर्स बोले, 3 रेज टू n, एक्चुअली q रेज टू n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस इसका क्या आएगा, 3 से 0 का हमेशा क्या आता है, आंसर 1 आता है, p रेज टू 0 का भी आंसर 1 आता है, इंटू q का क्यूब मतलब 5/6 का क्यूब, करेक्ट। बेसिकली इन शॉर्ट क्या आया, 1 माइनस 5/6 होल क्यूब आया, ठीक है। तो इतना करने से अच्छा आप शॉर्टली याद रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कोई डाइस थ्रो की है, 3 टाइम्स अगर थ्रो करेंगे तो हमें क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 गिरे, ठीक है, एटलीस्ट 6 गिरे। तो जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी पूछा गया एटलीस्ट 6 गिरे और थ्राइस मतलब 3 बार डाइस को थ्रो किया है, हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 3 थ्राइस मतलब 3 बार, और उन्होंने क्या कहा, देखो 3 थ्रोज बोला है, ठीक है। तो जब भी 3 थ्रोज बोला है तो हमारा क्यू जो है वो क्यूब में आ जाता है, क्योंकि 3 बार हमें डालना है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 ना गिरे, तो वो हमारा क्यू है कि 6 ना गिरे। तो वो जब भी हमें अगर फाइंड करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा 6 गिरे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक में से जो पॉसिबिलिटी नहीं है 6 गिरने की उसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो समझो अगर P मैंने ले लिया कि पॉसिबिलिटी है 6 गिरने की, और Q मैंने ले लिया कि पॉसिबिलिटी है 6 ना गिरने की, जो कि 5/6 है, तो मेरा 1 में से माइनस 5/6 करना पड़ेगा, वो भी 3 बार, ठीक है, 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 बार हम फेंक रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम आप ये याद कर सकते हो 1 माइनस 5/6 होल क्यूब आएगा, ठीक है। होप कि समझ में आया, थोड़ा सा ये लॉजिकल है, बट अगर आप शॉर्ट में अगर करना चाहे तो हमें इतना सा याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम 1 माइनस जो हमारा नहीं पॉसिबिलिटी है उसको माइनस करना है, और कितने बार थ्रो किया वो हमारा रेज टू हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 5/6 होल रेज टू क्यूब, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन यही दिया हुआ है। अगर सॉल्व करने जाए तो 1 माइनस 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 1 से उनको माइनस करेंगे, ठीक है। सो आंसर इज डी फॉर क्वेश्चन नंबर 55. होप यू अंडरस्टूड सेट ए. ओके, I tried to clear it, but if there is any doubt you can ask me. So practice it. Set A, here we are completing it. Okay, now I will start in the same video set B also. So let's start set B.